بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے رانا محمد سیماب اور آپ دیکھ رہے ہیں کلک اینڈ سیک نالج۔ دوستو، جہاں پیار محبت کی بات کی جائے وہاں تاج محل کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تاج محل کی تعمیر میں کس کی محبت کی داستان رقم ہے؟ یہ مقبرہ کس نے اور کب بنوایا؟ اس کی تعمیر کتنے عرصے میں ممکن ہوئی؟ خوبصورتی کا شاہکار مانے جانے والی یہ عمارت کا معمار کون تھا؟ تاج محل پر لگائے گئے پتھر کا راز کیا ہے؟ شاہ جہان کی کون سی خواہش ادھوری رہ گئی تھی؟ شاہ جہان کے دور حکومت میں ریاستی امور کے فیصلوں کی خود مختاری کس کے پاس تھی؟ اگر آپ ان سب سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ دوستو، دنیا میں محبت کی کئی داستانیں موجود ہیں، جیسے کہ ہیر رانجھا، شیری فرہاد، لیلا مجنو، سسی پنو، سونی مہیوال، شہزادہ سلیم اور انارکلی۔ یہ سب اپنے آپ میں محبت کی ایک مکمل داستان رکھتے ہیں۔ آج ہم آپ کی توجہ محبت کی جس داستان کی جانب مبذول کروانا چاہتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جی تو سامعین اور میرے معزز ناظرین، یہ داستان مغلیہ سلطنت کے عظیم سلطان شاہ جہان اور ملکہ ممتاز محل کے متعلق ہے۔ ان کی لافانی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شہزادہ شہاب الدین محمد خرم 16 برس کے تھے جب وہ ارجمند بانو کے عشق میں گرفتار ہوئے۔ 16 سال انتظار کرنے کے بعد سن 1912 میں انہوں نے ارجمند بانو سے نکاح کیا۔ ممتاز محل، جس کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھا، شاہ جہان کی سوتیلی ماں اور جہانگیر کی 20ویں بیوی ملکہ نور جہاں کی بھتیجی تھی۔ اس کے والد آصف خان دربار مغلیہ میں اہم عہدے پر فائز تھے۔ ممتاز محل شاہ جہان کی محبوب ترین بیوی تھی اور اسے ریاستی امور میں بہت وسیع اختیارات حاصل تھے۔ کچھ تاریخ دان یہاں تک کہتے ہیں کہ اس وقت مغلیہ دربار کی اصل حکمران ممتاز محل ہی تھی اور اس کے مشورے کے بغیر شاہ جہان کوئی فیصلہ نہیں لیتا تھا۔ ممتاز محل شاہی محل میں اس قدر طاقتور تھی کہ مغلیہ سلطنت کی اہم شاہ جہان کی یہ محبوب زوجہ اس کے ساتھ زیادہ دیر نہ رہ سکیں اور 14ویں بچے کی زچگی کے دوران وفات پا گئیں۔ وفات کے بعد ممتاز محل کو عارضی طور پر برہان پور میں دفنایا گیا۔ ممتاز محل کی وفات شاہ جہان کے لیے بہت بڑا سانحہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی محبوب بیوی کی جدائی کے غم کے باعث ریاستی امور میں دلچسپی لینا چھوڑ دی۔ موسیقی سے وہ دور ہو گیا اور بال بھی اس کے سفید ہو گئے۔ ہر طرح کی تقریبات اس نے منسوخ کر دیں۔ لیکن دوستو، عجیب بات یہ ہے کہ شاہ جہان نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی۔ پہلی شادی گندھاری بیگم سے ہوئی۔ ممتاز محل دوسری بیگم تھی، جبکہ تیسری شادی ممتاز محل کی وفات کے 4 سال بعد جہاں افروز نامی خاتون سے کی۔ ممتاز محل کی وفات کے 6 ماہ بعد اس کا جسد خاکی برہان پور سے آگرہ لایا گیا اور دریائے جمنا کے کنارے ایک جگہ منتقل کر دیا گیا۔ یہ زمین ایک مہاراجہ کی ملکیت تھی۔ شاہ جہان نے مہاراجہ کو ایک خوبصورت حویلی تحفے میں دی اور اس کے بدلے یہ زمین لے لی۔ اس جگہ پر اس نے تاج محل کی تعمیر شروع کروا دی۔ تاج محل کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز 1631 عیسوی میں ہوا۔ اس کا بنیادی خاکہ 1648 عیسوی میں مکمل ہوا، تاہم مزید چند سال اس پر نقش و نگار، تزئین و آرائش جیسے اختتامی مراحل کا کام جاری رہا۔ اس عظیم الشان محل کو تیار ہونے میں تقریباً 22 سال کا عرصہ لگا۔ تاج محل کا مکمل رقبہ 42 ایکڑ پر مشتمل ہے، جس میں مرکزی مقبرے کے علاوہ ایک جانب دہلی کی جامع مسجد کی طرز کی مسجد بھی ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ استاد عیسیٰ نے تعمیر کروائی تھی۔ مسجد کے بالکل سامنے حوض موجود ہے جہاں لوگ وضو کرتے ہیں۔ تاج محل کی دوسری طرف
बिल्कुल मस्जिद की सीध में मेहमान खाना या ऐवान मौजूद है। ये दोनों इमारतें सुर्ख संगे मरमर से तामीर की गई हैं। इसके अलावा ताजमहल के अहाते में एक चहार बाग वाक़ है, यानी कि 4 हिस्सों वाला वसी बाग। चहार बाग में मौजूद राहदारियाँ, फवारे, क्यारियाँ और दीगर तामीरी नमूने लाहौर के शालामार बाग से मिलते जुलते हैं। महल के 3 अतराफ दीवार है, जबकि दरिया की तरफ कोई दीवार नहीं है। ताजमहल में कुल 3 दरवाजे हैं, जिनमें 2 छोटे और 1 बड़ा दरवाज़ा है, और आमदोरफ्त के लिए यही बड़ा दरवाज़ा इस्तेमाल होता है। इस दरवाजे पर कुरानी आयात निहायत खूबसूरती के। ताजमहल की दीवार के बाहर कुछ और मकबरे भी नजर आते हैं, जो शाहजहां की दूसरी बीवियों और मुलाजमीन के हैं। दोस्तों, मस्जिद और मेहमान खाने के अलावा जो मरकजी इमारत इस अहाते में मौजूद है वो मुमताज़ महल और शाहजहां का मकबरा है। इसे ताज महल कहा जाता है। ताजमहल की इमारत मुख्तलिफ किस्म की तहजीबों के तर्ज तामीर का हसीन इम्तजाज है। इसमें फ़ारसी, तुर्की, हिंदुस्तानी और इस्लामी तर्ज तामीर सब की झलक नज़र आती है। मुकम्मल इमारत सफ़ेद संगे मरमर की है, जबकि इसका चबूतरा सुर्ख संगे मरमर से तैयार किया गया। मकबरा तकरीबन 55 मीटर बुलंद है। मकबरों के ठीक ऊपर एक बड़ा सा गुंबद है। 18 मीटर कतर का ये गुंबद तुर्क माहिर इस्माइल खान ने तैयार किया था। इस बड़े गुंबद के अलावा यहाँ छोटे गुंबद भी मौजूद हैं। गुंबद के ऊपर 19वीं सदी के आगाज तक सोने का कलश था, मगर बाद में इसे उतार लिया गया और इसकी जगह कांसी का कलश लगा दिया गया, जो अब तक मौजूद है। इसके अलावा ताजमहल के चारों कोनों पर 42 मीटर बुलंद एक मीनार भी मौजूद है। महल के अंदर 2 मकबरे नजर आते हैं। इनमें से एक शाहजहां का अपना और दूसरा मुमताज महल का है। ये सब असल मकबरों के ऐन ऊपर बनाए गए हैं। असल मकबरे तय खाने में मौजूद हैं। इसके अलावा ताजमहल में कुछ खास खुफिया रास्ते और कमरे भी मौजूद हैं, जिन्हें शाहजहां के दौर में ही बंद कर दिया गया था और ये आज तक बंद ही हैं। ताजमहल की तामीर पर एक अंदाजे के मुताबिक करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। इस रकम को अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये अरबों रुपए बनती है। इसकी तामीर पर उस वक़्त तकरीबन 20,000 मजदूरों और हुनरमंदों ने काम किया। ताजमहल में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया उनमें सफ़ेद संगे मरमर राजस्थान से लाया गया था, जबकि दीगर 28 किस्म के रंग बरंग के कीमती पत्थर दुनिया के कई दूसरे मुल्कों से मंगवाए गए थे। उन मुल्कों में तिब्बत, इटली, मिस्र, अफगानिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। ताजमहल जियोमेट्री और हिसाब के कवानीन के लिहाज से इस कदर ज़बरदस्त माना जाता है कि देखने वाला हैरत ज़दा रहे। हर दौर के माहिरीन तामीरात ने ताजमहल को मुग़ल तर्ज तामीर का उम्दा नमूना माना है। दोस्तों, ताजमहल फ़न खताती के आला नमूनों से भी मुज़य्यन है। इमारत की दीवारों, दरवाज़ों, रोशनदानों और जालियों पर जगह जगह ये नमूने मौजूद हैं। इसके दरो दीवार पर कुरानी आयात के अलावा अल्लाह ताला के 99 अस्माए हुस्ना इस खूबसूरती के साथ कंदा किए गए हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है। मुअर्रिखीन के मुताबिक ये खताती एक ईरानी खत्तात अमानत खान के ज़ेर सरपरस्ती हुई। इस लाजवाब इमारत मुगलिया सल्तनत के तामीराती नमूने को किसने तामीर किया, इस हवाले से कई लोगों के नाम सामने आते हैं। कुछ मुअर्रिखीन ने उस्ताद ईसा आफंदी नामी एक ईरानी इंजीनियर का नाम लिखा है, लेकिन कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक इस इमारत का असल मामार एक फ्रांसीसी इंजीनियर आस्टर दी बोर्दोकस है। कुछ का यह भी कहना है कि आस्टर ही दरअसल उस्ताद ईसा था। इसके अलावा इसके मामार के तौर पर इटली के एक इंजीनियर का नाम भी लिया जाता है, लेकिन इस हवाले से कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि चूंकि शाहजहां खुद एक मामार और बेहतरीन इंजीनियर था, तो हो सकता है कि ये इमारत खुद उसने डिज़ाइन की हो। इस सब के अलावा जो नाम सबसे ज़्यादा मुस्तनद समझा जाता है वो अहमद लाहौरी का है, क्योंकि अहमद लाहौरी वो मामार थे जिन्होंने लाहौर का लाल किला डिज़ाइन किया। अलबत्ता इस बात पर
सब मौरखीन मुत्तफिक हैं कि इमारत मोहम्मद हनीफ, अब्दुल करीम खान और मुकर्रमत खान की ज़ेर सरपरस्ती में तामीर हुआ। दोस्तों, ताजमहल के बारे में चंद ऐसे हकायक भी हैं जिनको जानकर शायद आप हैरान हों। सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया ताजमहल अपनी खूबसूरती की लाजवाल मिसाल है। इसकी खूबसूरती ये है कि इस संगमरमर की सफ़ेदी आज भी उसी तरह कायम दायम है। इस पर लगे पत्थर की खासियत ये भी है कि ये रंग बदलता है। दिन में सफ़ेदी मैल झलक देता है, जबकि तलुए आफ्ताब के वक़्त इसका रंग गुलाबी हो जाता है। कहा जाता है कि ताजमहल का असल दरवाज़ा इसकी पिछली जानिब है, यानी दरियाए जमुना की तरफ। बादशाह और बाकी लोग कश्तियों पर सवार होकर आया करते थे और दरिया वाली जानिब को ही असल दरवाज़ा कहा जाता था। लेकिन दूसरी जंग अजीम और दूसरी जंगों के दौरान इस पर हिफाजती खोल चढ़ा दिया गया था ताकि बमबारी की सूरत में इसको नुकसान ना हो। ताजमहल की तरह की कई इमारतें दुनिया भर में मौजूद हैं जो हूबहू इसको देखकर तामीर की गई हैं। इनमें से मशहूर इमारत चाइना और बांग्लादेश में हैं। शाहजहां का उर्स हर साल ताजमहल में मनाया जाता है। उस दिन सयाहों को शाहजहां और मुमताज़ महल की असल कब्रों को भी दिखाया जाता है। ताजमहल में सबसे पहला उर्स जिसका एहतमाम किया गया था वो मुमताज़ महल का 70वां उर्स था। शाहजहां को जब उसके बेटे औरंगजेब ने कैद किया तो शाहजहां ने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि उसे इस जगह पर कैद किया जाए जहां से ताजमहल नजर आता हो। उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसको आगरा के किले में ऐसी जगह कैद किया गया जहां से ताजमहल नजर आता था। ताजमहल के मीनार बिल्कुल सीधे नहीं हैं, बल्कि बाहर की जानिब झुके हुए हैं ताकि ज़लज़ले या तूफान के बायस अगर ये कभी गिरें तो इमारत के अंदर की बजाय बाहर की जानिब गिरें। ताजमहल से कीमती पत्थर अंग्रेज़ों ने उतार लिए थे, जिसकी वजह से ताजमहल का हुस्न मांद पड़ गया। शाहजहां जमुना के दूसरे किनारे ताजमहल के मध्य मुकाबल एक स्याह ताजमहल बनवाना चाहता था, मगर उसके बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर दिया। इस वजह से शाहजहां की यह ख्वाहिश अधूरी रह गई। दोस्तों, सनती आलूदगी की वजह से ताजमहल को काफ़ी नुकसान पहुंचा और इसकी रंगत सफ़ेद से जर्दी माइल हो गई। 1996 में भारतीय अदालत ने हुक्म दिया कि ताजमहल के इर्द गिर्द तकरीबन 1000 के करीब सनती कारखाने हटा दिए जाएं, जिनके धुएं और फजले से ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है। इस फैसले के बाद ये कारखाने बहुत दूर मुंतकिल कर दिए गए। मुगलिया सल्तनत के इस तामीराती नमूने को और इस मकबरे को 1983 में अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे यूनेस्को ने आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल कर लिया था। एक अंदाजे के मुताबिक इस शाहकार को दुनिया भर से 80 लाख लोग देखने के लिए आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा सियाहती मकाम। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर हर आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।